Hello and good morning, dear class 12th. Now today I am going to take up another poem, that is the fifth poem in your textbook, that is A Roadside Stand. And this is a poem by Robert Frost. He has been an American writer, American poet, born in 1874 lived up to 1963. He is a highly acclaimed, means famous, American poet of the 20th century. Now, Robert Frost wrote about characters, people, and landscapes. His poems are concerned with human tragedies and fears, his reaction to the complexities of life, and his ultimate acceptance of his burdens. You see, he talks about all the problems that we face in our day-to-day lives and its intricacies or complexities. And of course, Stopping by the Woods on a Snowy Evening and Birches. These two poems became very, very famous. And this, from Stopping by the Woods on a Snowy Evening, there are lines which were found on Pandit Jawaharlal Nehru's desk also at the time when he died. And they were, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Now, and of course, another one is Mending Walls, is also, of course, one of the famous poems. In the poem Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people. Deprived means those who do not have enough, to whom the society does not give enough benefit of prosperity. And here he raises their voice to complain against their behavior. And you see, with the pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity, and he is on the side of such marginalized people who are often neglected by the mainstream society. So this poem is all about that. I'll take it up now. The little old house was out with a little new shed. अक्सर ये होता है कि रोड साइड में जिनकी ज़मीनें होती हैं या रोड साइड में एक घर जो है, छोटा सा घर, उसने आगे को अपना मतलब ये शेड वगैरह बढ़ा लिया है और एक दुकान खोल ली है. The little old house was out with a little new shed, यानी कि नया शेड लग गया है उसमें. In front, at the edge of the road, उसको at the shoulder of the road भी कहते हैं, जो किनारे पे, रोड के किनारे पे, at the edge of the road where the traffic is sped, S-P-E-D, sped means speeding, speed, sped, where the traffic is speeding. A roadside stand that too pathetically pled. Pathetically means बड़ी दयनीय भावना से वो हाथ जोड़ के एक किस्म से विनती कर रहा है. Pled means pleading, pled. Here is pleaded. Pleaded की जगह ओल्ड इंग्लिश प्लेड. तो pleaded यानी कि याचिका कर रहा है, वो विनती कर रहा है. Pled. It would not be fair to say for a dole of bread. यानी कि ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा कि वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए विनती कर रहा है. बच्चों, डोल वैसे जो होता है वो फ्री में दिया हुआ अमाउंट होता है, जो कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो देते हैं. हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन अक्सर अ पीस ऑफ ब्रेड के सेंस में है. पीस ऑफ फ्री ब्रेड एक पीस है, यानी कि दे डोंट वांट आर्म्स, ALMS, आर्म्स. भीख नहीं मांग रहे वो हमसे. तो वो कह रहा है कि डोल ऑफ ब्रेड के लिए कहना ठीक नहीं होगा, बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ पैसा, द कैश whose flow supports the flower of cities, यानी कि इतना ही पैसा सही जितना कि फ्लावर ऑफ सिटीज को सपोर्ट करता है शहरों में, गमले लगाने में और अपने घर के ब्यूटिफिकेशन में. जितना थोड़ा सा पैसा शहर वाले यूं ही फूक देते हैं, उस पैसे की दरकार है. कह रहा है कि बहुत थोड़े से पैसे की दरकार है कि फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, कि वो विदर ना हो जाए. विदर माने होता है, इसको कहते हैं फेड हो जाना, यानी कि टू लूज द फ्रेशनेस.
यानी कि जिसमें मुरझा जाए, मतलब पेड़ न मुरझा जाए, इतना जो वो पैसा अपने गार्डन वगैरह को भी सपोर्ट में लगाने के लिए करते हैं. The far of series from sinking and withering faint. Sinking here also is not in the sense of drowning or something like that. It simply means that in dwindling or in getting less in number. फिर वो कह रहा है कि the polished traffic passed with a mind ahead. Polished traffic. देखिए एक मिसनॉमर लिया है, मिनोटनी होती है वैसे ही है, फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन ये सीबीएसई में चलता नहीं है ये वाला, तो इसलिए. लेकिन पॉलिश ट्रैफिक मीन्स पॉलिश कार्स. हम बच्चों से शाइनी मेटल भी कहते हैं कार्स वगैरह. तो पॉलिश ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर है कि, और ये मिनोटनी है वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच. तो पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, यानी कि उनको कहीं जाना है, उनका दिमाग जो है कहीं और है, उन्हें कहीं मंजिल तक पहुंचना है. विद अ माइंड अहेड. और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर वो कभी रुकते भी हैं साइड में एक मोमेंट के लिए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, किसी और वजहों से, नॉट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अस, जस्ट दे स्टॉप देयर फॉर अदर रीजंस. जैसे कि एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, ये समझाने के लिए हम लोगों को कि भाई ये तुमने ये जो लैंडस्केप यानी कि इतनी बेहतरीन ब्यूटी है इस जगह की, वो बिगाड़ दी है क्योंकि आपने ये अनाप शनाप पोत रखा है यहाँ पे. Having landscape marred means spoiled. With the artless paint means without any artistic sense. क्या आप लोगों को आर्टिस्टिक सेंस तो है नहीं. यहाँ पेंट से ये बोर्ड वगैरह लगा दिए, इससे ब्यूटी खराब होती है, नेचुरल ब्यूटी. Of signs that N turned wrong, या साइन बोर्ड लगाए हुए, साइन बनाए हुए कि N का पहला डंडा जो है कहीं मोड़ दिया, turned wrong and S turned wrong, यानी कि अल्फाबेट भी ठीक से नहीं लिखे. Offered for sale wild berries in wooden pots, यानी कि हम लोगों ने offered for sale, हमने सेल के लिए ऑफर करे हुए क्या क्या चीजें, जैसे वाइल्ड बेरीज हैं, इन वुडन pots, वुडन जो कंटेनर्स हैं उनके, चाहे आप बॉटल कह लीजिए या कंटेनर्स कह लीजिए, उसमें रखे हुए हैं. और ब्यूटी और क्रुकेड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, और क्रुकेड नेक वाला गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वार्ड्स, यानी कि सिल्वरी केसेस में वो सजाए हुए हैं सब. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यानी कि हियर द ब्यूटी आल्सो लाइज इन द माउंटेन सीन्स, यानी कि इट्स एन आइडियलिक ब्यूटी, IDYLLIC, आइडियलिक ब्यूटी कहते हैं जहाँ माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, इस तरह की ब्यूटी होती है, दैट इज कॉल्ड आइडियलिक ब्यूटी. यानी कि देयर इज आइडियलिक ब्यूटी ऑफ कोर्स लाइंग or spreading all across the mountains. You have the money, अरे आपके पास तो पैसा है, but if you want to be mean, अगर आप cheap बनना चाहते हैं तो why keep your money this crossly means so sadly and go along and continue going. मतलब अपना पैसा बड़ी बेशर्मी से आप लोग अपने पास रखते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं. कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों ने इतने रोड साइड स्टैंड यानी कि लोकल दुकानें यहाँ पे बनाई हैं, कुछ तो यहाँ से खरीद के लेके जाओ ताकि कुछ पैसा तो मिले, भले ही इतना हो वो जितना कि शहरों में लोग अपने घर के फूल वगैरह को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और ना ही आपसे डोल चाहिए. डोल मीन्स फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए. वी डोंट रिक्वायर एनी फ्रीबीज जिन्हें कहते हैं, फ्रीबीज नहीं चाहिए आपसे. Why keep your money this crossly means this sadly and go along. The hurt to the scenery could not be my complaint. चलिए ठीक है, आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम लोग ये लैंडस्केप बिगाड़ देते हैं, सीनरी बिगाड़ देते हैं, ये मेरा, इस बात से हमें कुछ नहीं कहना. लेकिन so much as the trusting sorrow of what is unsaid, लेकिन एक sorrow है जो कुछ नहीं कहा गया, उसके प्रति एक दुख है. Here far from the city we make our roadside stand, or this is the pleading, or this is the point of the poet. He says that here far from the city we make our roadside stand. इतनी दूर शहर से हम यहाँ पे रोड साइड स्टैंड बनाते हैं. And ask for some city money to feel in hand, ताकि कुछ शहर के लोग इधर उधर से जाए तो हम भी थोड़ा बहुत पैसा अपने हाथों में फील कर सकें. To try if it will not make our being expand. हम ये देखना चाहते हैं
कि क्या इससे हमारे अस्तित्व में बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी कि हम भी पनप जाएंगे इसी के सहारे. Being expand and give us the life of the moving pictures promised. जो आपके पिक्चरों वगैरह में दिखाया जाता है, इतनी शानदार जिंदगी दिखाई जाती है, लग्जरियस लाइफ दिखाई जाती है, एक पॉश कॉलोनीज दिखाई जाती है. भाई इतना पैसा, क्या हम भी थोड़ा बहुत उसका स्वाद चख सकते हैं? That the party in power is said to be keeping from us. और नेता तो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, तो क्या हम उसका थोड़ा भी सुख नहीं ले सकते? क्या हम उसके जरा भी हकदार नहीं? Now, it is in the news that all these beautiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages. बच्चों इन्हें रन ऑन लाइन्स कहते हैं, यानी कि एंड में भी लाइन अगर आप वहां तक मीनिंग निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा. इसे रन ऑन लाइन कहते हैं. और इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच वैसे एंजाममेंट है वो ENJAMBMENT, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि इस तरह की कोई चीज़ क्योंकि सीरियसली नहीं पढ़ाई जाती, तो कोई नहीं, आप ये समझ लीजिए रन ऑन लाइन है, यानी कि आगे बढ़ जाना है अगर सेंस लाइन के पूरे में नहीं आ रहा है. जैसे इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट, यानी कि ये जो गरीब लोग हैं इनको खरीद लिया जाएगा. एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और इनको निर्दयता से इनको गांव में बसा दिया जाएगा दोबारा. नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, ये लोग जो नेक्स्ट टू द थिएटर हैं या स्टोर के पास हैं, where they won't have to think for themselves anymore. फिर उन्हें गांव में फेंक दिया जाएगा, फिर उन्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी. They won't have to think anymore. और while greedy good doers, this is antithesis कहते हैं इस figure of speech को, कि greedy good doers माने भला काम करने वाले, और greedy जो है उल्टा टर्म है, यानी कि लालची, यानी कि जो भला कर सकता है दूसरे का वो लालची. तो ऐसे जो भला करने वाले हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, और इस तरह से कि किसी को अपना शिकार बनाने वाले, बीस्ट्स ऑफ प्रे. और बीस्ट्स ऑफ प्रे के साथ दूसरा वर्ड फिर ऑपोजिट यूज करा है, बेनिफिशिएंट. बेनिफिशिएंट मीन्स कहने को तो भला करने वाले हैं लेकिन उन्हीं का खून चूसने वाले. दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, और उन्होंने ऐसी कैलकुलेशन लगाई है कि वो दिमाग घूम जाएगा. And by teaching them how to sleep, they sleep all day. यानी कि इनकी ज़मीनें बेच के वो लोग इनको सोना सिखा रहे थे और खुद आराम से सोएंगे इनके पैसे पर, इनकी ज़मीनों पर. Destroy their sleeping at night, the ancient way. ये उसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे इनकी नींदों को, जैसे पुराना आदि मानव जो है वो रात को हंटिंग वगैरह के लिए उठता था, उसी तरह से इसको आदत बना देंगे रात को उठे रहने की. Anyway, friends, I hope that this is enough, and you must sink in the idea first, read it over and over again, and then come to some conclusion. And thereafter, I shall be continuing it tomorrow again. Thank you so very much.